Hello everyone and welcome to another video on my channel. This is the continuation of the फटाफट रिविजन सीरीज जिसमें हम लोग 30 या 30 के ज़्यादा MCQs सॉल्व करते हैं इन 15 मिनट्स यानी जितने क्वेश्चंस उसका हाफ टाइम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो के क्वेश्चंस काफ़ी सेलेक्टेड हैं, सो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखोगे एंड अपने सजेशंस कमेंट करोगे इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन। So the first question, in flowers of guava and cucumber, तो यहाँ guava and cucumber flowers के position of floral parts on thalamus का बात हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं ये डायग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि guava और cucumber के flowers होते हैं epigynous। तो epigynous means above the gynoecium। तो जितने भी floral parts होंगे, calyx, corolla, pistil, stamens, ये सारे gynoecium के ऊपर में होंगे, यानी the floral parts आर सुपीरियर दैन द ओवरी। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ओवरी इज सेमी इंफीरियर, ये गलत है। ओवरी यहाँ पे कंप्लीटली इंफीरियर है। स्टैमेंस आर सुपीरियर इन पोजिशन, दिस इज ट्रू। थैलेमस इज कन्वेक्स और कोनिकल, तो ये शेप नहीं है थैलेमस का। ओवरी वॉल एंड थैलेमस आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, तो फ्री नहीं, दे आर टुगेदर। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच इज अ करेक्ट मैच? Indigofera is a dye, but it belongs to family Fabaceae, not Solanaceae. Mulathi and Belladonna are medicine, but they both belong to two different families. Mulathi is from Fabaceae and Belladonna is from Solanaceae. Gloriosa tulip are ornamentals and belong to Liliaceae. Aloe vera is used in cosmetic, but it also belongs to Liliaceae. The correct match is option 2. Next, mark the correct option with respect to analogous structures. तो analogous structures are those structures जिसका same function होता है but different origin होता है। तो यहाँ पे phylloclade and phyllodes दो different parts की modification है but they both function as leaves। तो phylloclade जो है वो stem या किसी branch का modification होता है और phyllodes is the modification of petiole। तो these two are analogous organs. Correct is option number 3. Next, which of the following plants adventitious roots become swollen and fleshy due to storage of food? तो adventitious root में food storage होता है sweet potato में। Correct is option number 3. Next, find the mismatched pair with respect to functions of stem. Protection against grazing animals, thorns of bougainvillea, this is true. Thorns are modification of stem जो कि protection के लिए use होता है. Storage of food, tuber of potato, this is also true. Perennation, stolon of grass, तो stolon वो stem modification है जो plant के growth and expansion के लिए होता है, not for perennation. और दूसरी बात, grass में stolons नहीं होता, grass में runners होता है. Manufacture of food, leaf base of nepenthes, this is also true. The mismatched pair is option number 3. Next, which of the following is incorrectly matched? Modified taproot for respiration, rhizophora में होता है, this is true. Storage taproot, turmeric में, this is wrong. Turmeric में जो storage होता है वो taproot में नहीं होता है, rhizome में होता है. Modified taproot for storage, turnip. Photosynthetic stem, opuntia. तो mismatched or incorrect match is option number 2. Next, flowers having corolla of different sized petals represent which one of the following estivation? तो जिसमें different size of petals होते हैं, that estivation is vexillary. इसमें 3 different shapes and size के petal होते हैं and this estivation is found in P. So correct option is option 4. Next, false fruits with fleshy and edible thalamus. तो false fruits जिसमें thalamus edible होता है are pear, apple and strawberry. So correct is option number 4. Next, mark the correct feature with respect to cucumber. Free central placentation, तो ये wrong है. cucumber में parietal placentation होता है. Leaf tendril, this is also wrong. cucumber में stem tendril होता है.
सुपीरियर ओवरी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि इसमें इंफीरियर यानी एपिगाइनस ओवरी होता है, तो उस हिसाब से एपिगाइनस फ्लावर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Leaf or its part may modify into long, slender, thread-like sensitive structures in all except, तो ये long thread-like sensitive structures are tendrils। तो लीफ, लीफलेट या लीफ एपेक्स के टेंड्रिल्स बनते हैं गार्डन पी, स्वीट पी एंड नेपेंथिस में, बट पंपकिन में लीफ या उसके पार्ट का टेंड्रिल नहीं बनता, पंपकिन में स्टेम मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Next, if the margins of petals overlaps one another in any particular direction, then it is called dash and represented by dash family। तो यहाँ पे margins overlap कर रहे हैं सिर्फ एक particular direction में, like this। तो this is twisted aestivation और ये चाइना रोज में मिलता है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि ओवरलैप वन अनदर नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है तो दैट इज ट्विस्टेड। नेक्स्ट, फ्लावर्स विथ ओवरी कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय थैलेमस इज फाउंड इन। तो अभी हम लोग देखे थे ये थैलेमस है, उसके अंदर ओवरी है और उसके ऊपर में फ्लोरल पार्ट्स है। तो दिस इज एपिगाइनस कंडीशन और एपिगाइनस कंडीशन होता है गुआवा में, कुकुम्बर में एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में। तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। Some plants of arid region modify their stems into, तो arid यानी dry desert conditions में प्लांट्स अपने स्टेम को मॉडिफाई करते हैं इनटू फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि होता है फिल्लोक्लेड। एंड फिल्लोक्लेड क्योंकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो फूड सिंथेसिस भी करेगा और ये क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन भी रिड्यूस करता है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3, फ्लैटेंड फिल्लोक्लेड फॉर फूड सिंथेसिस। यहाँ पे फिल्लोड और फिल्लोक्लेड में कंफ्यूज नहीं होना है। If you guys want me to explain the difference between phylloid and phylloklade, then do comment. I will make a separate video on that. Next, in which of the following lateral branches originate from the basal and underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upwards, giving rise to leafy shoot? तो ऐसा देखा जाता है बनाना में ऊपर ब्रांचेस नहीं होते हैं, सिर्फ लीव्स होते हैं और इसमें रूट्स के बगल से ऑब्लिकली सॉइल के अंडरग्राउंड से लैटरल स्टेम्स निकलते हैं और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि बनाना के मेन प्लांट के बगल में छोटे से बनाना प्लांट से ऊपर में टफ्ट ऑफ लीव्स लिए हुए। तो दीज आर कॉल्ड सकर्स एंड दीज आर फाउंड इन पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड बनाना। सो करेक्ट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, The origin of root hairs and lateral roots is, तो root hairs क्या होते हैं एपिडर्मल, तो उनका ओरिजिन होता है एक्सोजीनस और जो lateral roots होते हैं वो अंदर वैस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट होकर ओरिजिनेट करते हैं, तो उनका ओरिजिन इज एंडोजीनस। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो tuber of potato, corm of colocasia and rhizomes, these are modifications of stem. But pitcher of nepenthes, nepenthes is the pitcher plant, insectivorous plant, तो उसका pitcher जो होता है वो leaf modification होता है, stem का modification नहीं होता है। So correct is option number 2. Next, thorns, spines and prickles work as, तो थॉर्न्स, स्पाइंस एंड प्रिकल्स वो प्लांट के डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए होते हैं। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4, फंक्शन एज डिफेंसिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट, फैमिली फैबेसी इज कंसर्न्ड विथ, तो यहाँ फैमिली फैबेसी के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा सही है वो देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो फैमिली है उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फैमिली फैबेसी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पी। तो हम लोग पी में जानते हैं कि डाई एडल्फिस स्टेमन होता है, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है।
तो यहाँ पे दो ऑप्शंस में है डाइएडल्फस स्टेमन। और पी का प्लासेंटेशन जो होता है वो इस तरह से मार्जिनल होता है, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन। और जब हम लोग फैबेसी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं गाइनोशियम के लिए, तो उसका बार इधर नीचे देते हैं, मतलब दैट इज हाइपोगाइनस ओवरी। तो यहाँ पे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी ये रॉन्ग हो गया। और पी के लिए हम लोग जानते हैं कि वेक्सिलरी कोरोला होता है और उसका जो पेटल होता है पोस्टीरियर वाला वो लार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फैबेसी, यानी ऑप्शन 2 में सारे कैरेक्टर्स सही है जो फैबेसी से मैच करते हैं। Select the correct option for A, B and C in the given diagram of papillonaceous corolla. Papillonaceous मतलब वैक्सिलरी, सेम है दोनों। अब यहाँ पे जो हम लोग वैक्सिलरी देख रहे थे उसमें ये सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा विंग दैट इज वैक्सिलम, और उसके बाद ये छोटे छोटे जो हैं साइड में दीज आर विंग्स, एंड जो सबसे छोटा है सी दैट इज कील। तो करेक्ट इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग्स ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो कोलियोराइजा कवर करता है दैट पार्ट ऑफ द सीड जो आगे चल के रूट डेवलप करेगा, दैट इज रेडिकल, एंड कोलियोप्टाइल कवर्स दैट पार्ट जो आगे चल के शूट डेवलप करेगा, दैट इज प्यूम्यूल। सो करेक्ट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। सो एंडोस्पर्मिक सीड्स यहाँ पे दो ऑप्शंस में है, बार्ले एंड कैस्टर। सो करेक्ट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर एंडोस्पर्मिक सीड्स। नेक्स्ट, floral formula represents the family with one of the following group of plants. तो यहाँ पे ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियांथ जिसमें टेपल 6 का अरेंजमेंट है, फिर एंड्रोशियम जिसमें स्टैमेन 6 है और ये एंड्रोशियम 3+3 है, मतलब ये डाइएडल्फस है। उसके बाद गाइनोशियम में भी ट्राइकार्पेलरी है। तो दिस फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी, एंड लिलिएसी के मेंबर्स यहाँ पे है लिली एंड पेट्यूनिया। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, स्क्यूटेलम इज। तो स्क्यूटेलम जो होता है वो शील्ड शेप का एक बड़ा सा कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट्स में। सो करेक्ट इज ऑप्शन 3 that it is a shield shaped large cotyledon of grasses because grasses are monocots. Next, fruit of coconut has। तो कोकोनट का फ्रूट जो होता है उसमें मेसोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है और एंडोकार्प जो होता है वो स्टोनी होता है। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इट हैज फाइब्रस मेसोकार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प। The character of flower which is represented by floral formula but not by floral diagram is। तो जो पोजीशन ऑफ गाइनोशियम है उसको फ्लोरल फॉर्मूला से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट फ्लोरल डायग्राम में उसको नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे कि ये जी गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो बार है वो अदर वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है। जब ये बार जी के नीचे है दैट इज हाइपोगाइनस मीन्स सुपीरियर ओवरी, this is perigynous that is half inferior ovary, and this is epigynous that is inferior ovary. So correct option is option number 3, position of gynoecium which cannot be represented by floral diagram. Next, how many chromosomes are present in allurone layer if scutellum has 20 chromosome? तो ये जो scutellum है that is part of embryo that is diploid. So 2n is equal to 20, therefore n is equal to 10, and allurone layer is triploid that is 3n, तो इसमें number of chromosomes हो जाएगा 30. So correct option is option number 2. Next, coconut husk fiber or coir of commerce is extracted from। तो जो coconut husk होता है that is mesocarp, so correct is option number 2. Next, a plant has butterfly shaped flower with one standard, 2 wings and 2 keel petals. The plant belongs to the family. This is vexillary aestivation,
and maxillary estivation is found in family Liliaceae or Papilionaceae. So correct is option 1. So the last and 30th question of the video is, when ovules are developed from the inner wall of unilocular ovary, the placentation is called. तो ये ओवरी का वॉल है और इसके इनर वॉल से यहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं. So this placentation is parietal placentation and it is found in argemone and mustard. So correct is option 2. So that's all for morphology in flowering plants. Do like the video, comment your suggestions below. और नीट 2021 से लेके कोई भी क्वायरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड डू सब्सक्राइब. Till the next video comes, all the best and take care.